Assalamualaikum students. Today we are going to study social studies of class 4. So let's start. So here it is our contents list, unit number 4 soil on page number 24. Let's read. Unit number 4 soil. The top layer of the earth is covered with soil. Plants grow in soil because it consists of rocks and organic matter. The organic matter present in the soil is humus, which consists of dead vegetation and animal particles. Humus makes soil fertile. अब जो हमारी ज़मीन है वो ऊपर से सॉइल के साथ ढकी हुई है. प्लांट्स वगैरह जो चीज़ें उगती हैं वो इस पर उगती हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल और रॉक्स होते हैं. जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उस सॉइल में वो ह्यूमस होता है, जो कि एनिमल पार्टिकल्स मतलब मरे हुए जानवरों के कुछ पार्टिकल्स होते हैं उसमें, उससे बना हुआ होता है जो हमारे ज़मीन को फर्टाइल बनाता है. Most fertile soil. The most fertile soil contains fine particles of sand and clay. Such soil is found along rivers. Reason for that is when the rain falls on mountains, water bring these particles with it. So when the river reaches the flatlands, the flow of river decreases as compared to that in the mountains. These particles start depositing on the side of rivers, thus making such areas fertile. The mixture of such particles of land and clay is called alluvium. अब ज़्यादा जो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है उसमें सैंड और क्ले के पार्टिकल्स होते हैं. ऐसी सॉइल जो है नदियों के पास पाई जाती है क्योंकि जब हमारी बरसात होती है तो वो ऊपर से माउंटेन से जो पानी अपने साथ पार्टिकल्स लाता है तो उसमें वो मिक्स हो जाती है और सीधे लैंड्स पर आकर बह जाती है, तो इसकी वजह से वो सीधी होती है. अब ऐसे मिक्सचर को हम एल्यूवियम कहते हैं. लेस फर्टाइल सॉइल. कल्टिवेशन इज मोस्टली कैरीड आउट ऑन फ्लैट लैंड. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन rocky areas because the rocks do not absorb water and are very hard. The Rocky Mountains are not fertile land because of rocks. There are some mountains areas which are less fertile than areas in flatlands. In such areas, farmers make leveled field to grow crop on the slopes of mountains. These leveled fields are called terraces. अब जो हमारी कल्टीवेशन है वो ज़्यादातर सीधे ज़मीनों पर उगाई जाती है. अब हमारे जो रॉकी एरियाज़ हैं, पथरीले इलाके हैं, वहाँ पर हमारी खेती बाड़ी नहीं हो सकती क्योंकि रॉक्स जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते और बहुत सख्त होते हैं. जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो नॉन फर्टाइल होते हैं क्योंकि वहाँ पर पत्थर होते हैं. अब कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जहाँ पर उगाए जाते हैं, वहाँ पर फार्मर्स मतलब किसान जो हैं वो लेवल्स बनाकर ज़मीन उगाते हैं और ऐसी ज़मीनों को हम टेरेसेस कहते हैं. कम ऑन नेक्स्ट पेज. Non-fertile soil. The most uncultivated land or the most unfertile land is the desert. Deserts are formed in areas where there is no rainfall or water, or such land is covered with sand. These deserts are covered with sand which is hot in summer because very hot, and winter is extremely cold. Even the day and night temperatures are very different due to such extreme climate and no water. It is impossible to cultivate the desert. अब हमारे जो ज़्यादा बंजर ज़मीन है वो डेज़र्ट सहरा होते हैं. सहरा में सिर्फ रेत होती है, वहाँ पर कोई रेनफॉल मतलब बारिश नहीं होती, कोई पानी नहीं होता. इस वजह से वहाँ पर हम कुछ भी नहीं उगा सकते. और वहाँ पर जो है रेत से कवर होता है जो कि गर्मियों में बहुत गर्म हो जाती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म. जबकि दिन में या नाइट टेम्परेचर्स वहाँ पर बहुत डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पर ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ पर खेती नहीं हो सकती. Loss of fertile land. Soil erosion. The soft and fertile soil can be washed away by heavy rains and strong winds. This is called the soil erosion. अब जो हमारी मिट्टी होती है वो दूर चली जाती है, जबकि तेज़ हमारी बारिशें होती हैं या बहुत तेज़ हमारी हवाएं चल रही होती हैं, इसको हम soil erosion कहते हैं. Salinity. Another way the soil can become less fertile or totally useless is because of soil salinity. Soil salinity is the salt content of the soil. Salt affects soil or caused by excess accumulation of salts. Almost all water, even natural rainfall, contains some dissolved salt. When plants use water, the salts are left behind in the soil and eventually begin to accumulate. As soil salinity increases, salt effects can result in degradation of soil and vegetation.
because it makes it more difficult for plants to absorb moisture from the soil and they die because of the lack of water. The salt can accumulate to such levels that it come over the ground and cover it like a blanket which is even visible to the human eye. अब हमारा जो दूसरा मतलब मिट्टी ख़राब होने का तरीका है वो है हमारा सैलिनिटी। अब जो हमारे सॉइल सैलिनिटी है वो इस वजह से हो जाती है कि हमारा जो सॉल्ट होता है वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाता है क्यों, और फिर वो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है। अब वो कैसे, क्योंकि जब भी हमारी रेनफॉल होती है सारे पानी रेनफॉल तक में हमारा सॉल्ट मौजूद होता है। जब हमारे प्लांट्स पानी इस्तेमाल करते हैं तो जो उसका सॉल्ट होता है वो पीछे रह जाता है और वो ज़मीन में ही रहता है, तो ज़मीन को वो ख़राब करता जाता है और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो हमारे प्लांट्स को जो मतलब मॉइस्चर वगैरह है मिट्टी से वो मिलना मुश्किल हो जाता है और फिर वो मर जाते हैं। अब कभी कभार जो है सॉल्ट इतना उसमें बढ़ जाता है कि वो हमें भी नज़र आने लगता है। Preservation of fertile soil. Preservation of fertile soil is important because land loses its fertility with time. Artificial fertilizers are added in the soil to increase its productivity. The farmers are advised to add fertilizers before every crop. अब प्रिजर्वेशन जो है सॉइल के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमारी जो ज़मीन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो सब्ज़ा जारी होती है जिसे उगाने की ताकत होती है वो खोती जाती है। तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि ज़्यादा फसल उगाई जाए। तो फार्मर्स को एडवाइस है कि जब भी वो खेती करें तो पहले फर्टिलाइज़र्स ज़मीन में डालें। That's all about our reading. Let's solve its exercises. Turn the page. Question number 1 is what is humus? Answer यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ सॉइल इरोजन? आंसर पूरा आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर टेरेसेस? आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड व्हाट इज़ इट कॉल्ड? आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे पहले, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ सॉइल सैलिनिटी एंड व्हाट डज इट डू? ये आंसर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ फर्टिलिटी ऑफ लैंड कैन बी प्रिजर्व्ड? आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी तक। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट विच इज़ द मोस्ट नॉन फर्टाइल सॉइल एंड वाई? आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे हम। Objective exercises. Number A, fill in the blanks. Number 1, the top layer of the earth is covered with dash soil. Number 2, the most fertile soil contains fine particles of dash sand and clay. Number 3, the most infertile land is dash desert. Number 4, the farmer use dash to fertile their land fertilizer. Number 5, during soil salinity the ground gets covered with dash salt. B, take the correct statement and cross the false statement. Number 1, the mixture of sand and clay is called alluvium. True. Number 2, soil erosion is good for farmers. False. Number 3, deserts can be cultivated because of extreme climate. False. Number 4, farmers are advised to use fertilizers. True. Number 5, humus makes soil fertile. True. Number C, what is good or bad for the fertile soil? Match the conditions with the correct box. अब यहाँ पर दो बॉक्सेस हैं, गुड और बैड। यहाँ पर ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा गुड है कौन सा बैड है। नंबर 1 ह्यूमस, गुड। नंबर 2 सैलिनिटी, बैड। एलुवियम, गुड। हैवी रेनफॉल, बैड। फर्टिलाइज़र, गुड। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, बैड। सो हमने अपनी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं, आपने ये अपने कॉपी में उतारना है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइजेस एंड रीडिंग। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।